हमने एक गीता वचन अग्निहोत्र प्रचार के सिलसिले में काफ़ी बार यूज़ किया है, उस पर थोड़ी चर्चा, उस पर थोड़ा विचार करने की मुझे आवश्यकता लगती है। वो है स यज्ञ प्रजा सृष्टो अपूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्म एषवो इष्ट कामधु। This is a hymn that is from the Bhagavad Gita that many of our Agnihotra teachers have been using for the past many years. And then this is a hymn that we use to describe the importance of performance of homas, performance of Agnihotra, and that's how the Bhagavad Gita has sung many praises of this whole practice. इस श्लोक में और भगवद गीता में इतत्र भी अग्निहोत्र की हवनों का जो महत्व वर्णन किया है, उसको उद्धृत करने के लिए, उसको लोगों के सामने विस्तार से रखने के लिए इस श्लोक का हमने हमेशा एक संदर्भ दिया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि सहयज्ञ, यज्ञ के साथ प्रजा निर्माण करके जो प्रजापति है, जो सृष्टि निर्माण करने वाली शक्ति है, उन्होंने यज्ञ के साथ प्रजा निर्माण की और यज्ञ के माध्यम से जो भी इष्ट है, जो भी प्राप्तव्य है, उसको प्राप्त करने की संधि सबको दी है, ऐसा उसमें वर्णन किया गया है। इन दिस हिम, इन दिस पर्टिकुलर stanza from the Bhagavad Gita, it is from the 3rd chapter of the Bhagavad Gita, I think the 10th verse or something, if I'm not wrong. उसमें in that Lord Krishna is saying that the creator, the creative energy of this universe created the entire life with performance or with the advice or with the revelation of yajnas, and have given this as a gift for getting what is needed, what is wanted, what has to be achieved for everybody, for all of humanity, for all mankind, so to say. So this is the translation that we have been using, this is the translation that we have been understanding. And this is something that many of the scholars have also, I think, tried to put forward, because this is a literal word-to-word translation of that Sanskrit word, from Sanskrit to English translation. ये उसका जो ये स्पष्टीकरण है, उसका जो अनुवाद है, ये काफ़ी विद्वानों ने भी किया है, हमने भी काफ़ी इसी प्रकार का उस पर विचार करते आए हैं, क्योंकि उसका शब्दार्थ है, उसका जो शब्दशः अर्थ होता है संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से मराठी, संस्कृत से बाकी कोई भाषाएं हो, इंग्लिश हो या बाकी भी कोई भाषाएं हो, उसमें अगर उसका शब्दशः अर्थ करते तो ये होता है कि यज्ञों के साथ उसका हमने निर्माण किया गया है। पिछले 3 हफ्तों में अग्निहोत्र का जो हमने अभ्यास किया है आज तक, बहुत सारा विषय अभी भी बाकी है। मैंने जैसे उस दिन भी कहा था कि अगर अग्निहोत्र के बारे में बात करने जाए तो अभी भी बहुत सारा कहना, सुनना, समझना बाकी है, क्योंकि अभी भी तो 20-25 दिन ही हुए हैं और इतने में तो पूरा होना इतने में पूरा कहना मुश्किल है, और 20-25 दिन अगर होते तो शायद पूरा करने का मैं प्रयास करता, लेकिन क्योंकि ये जो विस्तारित विषय है बहुत गहन है, बहुत उसमें आप उसके जितना भी उसको समझने जाओ उतना वो विस्तारित विषय होता है। आज तक हमने जितना अग्निहोत्र का अभ्यास किया है, वो जितना हमको समझ में आया, जितना हो सका उतना हमने सामने रखा है, और ये बहुत एक विशाल विषय है। और इसमें अभी तक अगर आप देखें 20-25 दिन केवल हम एक ही विषय लेके चल रहे हैं, इसी को समझने में इतना समय है, क्योंकि इतना वो महत्वपूर्ण विषय भी है। There's a lot that could have been said, that has to be said about the process of Agnihotra, because it's a quite large concept, it's a quite detailed idea. It took me almost so many weeks, almost 3.5 weeks now, to get to where we have to understand this part of the whole process. There's so much more that needs to be understood, and the more we go into it, the more detailed it becomes, the more overwhelming also sometimes it could become. It is such a vast storehouse of knowledge that is there. From whatever we have discussed so far, what we have seen is that
Agnihotra, whatever research I could explain to you, whatever textual references we have been giving of Agnihotra also have been what? That Agnihotra can help you reduce stress, It can clear the environment around you. It can also enable you to maybe enhance your immune system, maybe it can also calm down your stress level, thus reducing your body parameters from going haywire, thus reducing the risk of lifestyle disorders. It can also have an effect, positive effect on the air column around you. It can help maybe also purify drinking water or add value to drinking water. It can aid in agriculture, and it can have a positive effect on the children, positive effect on the plants. We saw that it has a positive effect on animals as well. So many positives that we could discuss over the last some days. पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि अग्निहोत्र का जितना भी ग्रंथार्थ है, जितना भी ग्रंथों में वर्णन किया हुआ, जितना उसका लाभ है, उसके जितने भी फायदे हम जो नजर आए हैं, वो हमने उन पर चर्चा की। उनके जितने भी वैज्ञानिक हमने जितने भी संशोधन किया है उस पर हमने चर्चा की। और ऐसा हमने उसका अगर एक अगर सार निकालने जाए तो ऐसा नजर आएगा कि अग्निहोत्र के माध्यम से मन में का तान तनाव कम होता है। उसमें आरोग्य की जो कि व्याख्या है, आपकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है उसमें वर्धन होता है। तनाव जन्य व्याधि जो है, ब्लड प्रेशर वगैरह की जो संभावना है उसमें कमी आती है। आपका आसपास के जो हवा है उसको वो सकारात्मक परिणाम करता है। जल पर सकारात्मक परिणाम होता है, शुद्धिकर बहाव जल में होता है। भूमि पर एक अच्छा भाव एक उसमें परिणाम होता है, जिसमें भूमि की उपजाऊ तत्व जो है वो उसमें वर्धन होता है। पशुओं पे अच्छा लाभ है, पौधों पे अच्छा लाभ है, वनस्पति पर अच्छा लाभ है, मानवीय जीवन पर है। इतना सब अगर हमने देखा है तो हम इसको अगर अभी भी हमने उसको ऊपरी सतह पर सोचा है, अगर उसको अगर आप एक अभ्यासक की वृत्ति से अगर जब मैं देखता हूं कि इतना सारा अगर उसमें हो सकता है, तो क्या अग्निहोत्र के माध्यम से मानवीय जीवन सर्वतोपरि परिवर्तित हो सकता है क्या? हमने तो केवल उसको व्यक्तिगत लाभ देखा है। तो बहुत ही उसमें हमने किसी का अगर स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, या अगर हमने ये नहीं सोचा है कि अग्निहोत्र का अगर स्ट्रेस कम करता है मतलब वो काल्पनिक नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष में भी दिखता है। What the point I'm trying to make is that if Agnihotra can have all of these benefits that we have talked about, they are not hypothetical benefits, they are quantifiable benefits. We have been able to tangibly show them in a lab, on a piece of paper, that this can happen, that it can literally change human system, human physiology for that matter. मानवीय मन पर अगर असर करता होगा मतलब मन के किसी एक भाव पर, किसी एक घटक पर असर करता है, जिसके वजह से तनाव कम होता है। इफ इट कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस, इट इज नॉट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट इज इनैक्टिंग सम फिजिकल चेंज इन द सिस्टम ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बीइंग दैट वी आर, which is causing this change to come forward, which is causing this effect to take place. It is having a physical effect on the air around you. It is having a physical effect on the water around you. It's not like if I'm meditating and I'm reducing my stress. If I meditate and reduce my stress, the water around me has no effect on it. It has a very basic effect on the air around me. But Agnihotra is a practice which is not only changing my own system, but systems around us as well. And this is not in a, how can I say, in a make-believe way. It is a physico-chemical change, even a physico-chemical-biological change. If it can reduce the bacterial colonies in a petri dish, that means it has an effect on the biological organism around us as well. Whatever the fumes are coming, it could be so many. Somebody said it could be the formaldehyde that is coming out of this, or maybe better explanations could be out there. But the fact that this practice can change the physical, chemical and biological structures in the area it is performed,
the thought that naturally comes to my mind is, can then we use this to change human life from where it is to where it should have been? इसका अगर हम लोग विस्तारित विचार करें कि अगर इसमें एक पेटी डिश में रखा है, एक लैब में उसमें बैक्टीरिया रखा है और उस पर वो असर कर रहा है, उस पर भी कमी आ रही है, वातावरण का भी परिणाम हो रहा है, मानवीय शरीर का भी परिणाम हो रहा है, पौधे भी अच्छे उग रहे हैं, पानी भी अच्छे, मतलब भौतिक, रासायनिक, जैविक, इन तीनों अवस्थाओं पर इसका परिणाम होता है। अब वो इसमें निकलने वाला गैस है, वो उसमें से निकलने वाली कोई दूसरे का ड्रॉपलेट निकलते हैं, घी के, वाटर वेपर, जो भी निकलता होगा उसमें अभी तकनीकी जो भी उसमें उसका जो भी कारण होगा वो तो समझने के लिए अवसर लगेगा अभी भी, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण में नजर आता है कि इन तीनों अवस्थाओं में, इन तीनों क्षेत्रों में इसके आचरण से फर्क पड़ता है। तो आप जब हम एक व्यक्ति अगर जब सोचता है तो वो क्या सोचता है कि मेरे जीवन में क्या लाभ मिला। आप अगर अग्निहोत्र करते हो तो आप क्या सोचोगे कि भाई मेरा स्ट्रेस बहुत है, भाई मैं करने से मेरा ठीक हो जाएगा। या कोई अगर उद्योजक है वो क्या सोचेगा, मेरे फैक्ट्री में अग्निहोत्र करो, मेरे उसका मेरे जो हमारे सरकारी है, सहकर्मचारी है, उनको लाभ होगा। स्कूलों में करो, बच्चों पे लाभ होगा। कृषि में करो, पौधों पर लाभ होगा। हमने इसी तरह सोचा है इसको। We have always thought it from a very individual perspective, that I do Agnihotra because I am in stress, or I do it in my workplace because I want all my co-workers to feel the benefit. Do it in my school, the children are benefited. We would do it in my farm because then the crop is benefited. We have always thought of it from a piecemeal kind of an idea. But if you all put it all together, you would understand that maybe we could channelize human life from where it is right now to where it should have been. We can maybe change the physical potential of human body itself. Maybe that is possible. Maybe with regular performance of Homa, is that something we could achieve? We could change the biology of the body in a way that it becomes more beneficial, that we can get access to more parts of our own system that we have not been able to. You know, am I making sense? Are you trying to? आप समझ पा रहे हो कि शायद अग्निहोत्र के नित्य आचरण के माध्यम से हम मानवीय जीवन को सर्वतोपरि परिवर्तित कर पाएंगे। और ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, कोई परिकथा नहीं है कि ऐसा होता था, तभी ऐसा हुआ था, फिर वो ऐसे राक्षस आते थे, वो टाइप का कोई कथा नहीं है। ये पौराणिक कथाओं का आधार नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण में है कि क्या हम इसके नित्य आचरण के माध्यम से मानवीय जीवन का जो आज का मानवीय जो अस्तित्व है, उसकी जो आज की आउटपुट कैपेसिटी है, उसकी जो आज की क्षमता है, उसकी क्षमता में वर्धन कर सकते हैं। और ये तो प्रत्यक्ष में दिखता है कि आपका फोकस बढ़ेगा तो आप काम बेटर कर पा रहे हो, आप अगर स्ट्रेस कम है तो आपका रिएक्शन अच्छा पॉजिटिव आ रहा है, आपका अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपके काम में आउटपुट कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आपको आपकी विचारों में प्रगति होगी, आपके शरीर में अगर तनाव कम है तो शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो योग के माध्यम से चलेंगी। If you are free of stress, your clarity of thought is better. If you are your focus is better, you can have an enhanced output levels. If you're concentrating on particular project at hand, of course you're going to deliver better results. If your creativity is enhanced, you can have a larger scheme of thoughts to decide and maybe have a better impact on the field of work that you are participating in. If stress is low in the body, the metabolism is going to be much better suited. This is something that we have to understand from a third-party perspective or from a study standpoint. That's what I'm trying to understand. That can be maybe there are 100,000 or 200,000 practitioners out there right now who are doing Agnihotra, and then we ask this a very random question: how many years have you been doing Agnihotra, and what is your current status? ये हमने प्रश्न पूछा कि आज 1,00,000 2,00,000 जितने भी अग्निहोत्री होंगे बाहर, मुझे पता नहीं कि आप अग्निहोत्री कब से कर रहे हो और आपका आज क्या आपकी स्थिति है।
तो जितने भी रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं कि किस मतलब सब लोग आनंदी हैं इस विकट परिस्थिति में भी। तो ये एक वैज्ञानिक पार्श्वभूमि से सोचिए, एक वैद्यकीय पार्श्वभूमि से अगर मैं सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या अग्निहोत्र के माध्यम से हम वाकई एक नया मानव निर्माण कर सकेंगे क्या? That is the whole idea, that can we use this technology, and I call this technology, I'm going to get a lot of flack, a lot of trolls are going to come and hate me for this, but I'm going to still say this. This is a technology. It looks like a religion right now because sadly that's how we categorized it. But so was yoga, so was Ayurveda, so was meditation, and so is Agnihotra. If we can call that a technology, and this is also in the same category, can we use these sciences to realize the creation of a new human who is far advanced than what we are today? A whole new generation of humanity that is far more evolved than what we are, a better iteration of ourselves. और मैं इसको हमेशा तकनीक कहता हूँ, और मुझे काफ़ी गालियाँ पड़ेंगी इसके लिए, मुझे पता है, काफ़ी लोग कमेंट में गालियाँ देंगे, लेकिन उसके परे जा चुका हूँ मैं अभी, क्योंकि मुझे अभी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसका असर देख लिया है और अब मैं इसको डिफेंड करने के मूड में नहीं हूँ। योग इसको आध्यात्मिक है, ये धार्मिक है, ये सब बकवास है, ये आप बोलते रहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही योग के बारे में बोला जाता था, यही आयुर्वेद के बारे में बोला गया, ध्यान के बारे में बोला गया कि ये सब आध्यात्मिक है, ये सब धार्मिक है, ये सब काल भाई है, आपकी उंगलियां हैं, आपको टाइप करना है, टाइप करिए। मैं इसको तकनीक कहूँगा, मैं इसको टेक्नोलॉजी कहूँगा। ये मेरा विचार ऐसा आता है एक वैद्यकीय क्षेत्र का व्यक्ति समझकर कि क्या हम इसके माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से सचमुच एक नई पीढ़ी जन्म दे सकेंगे क्या, जो हमसे बेहतर सोचती होगी, जो मानसिक उसका विकास हमसे बेटर होगा, शारीरिक विकास हमसे बेटर होगा, रोग प्रतिकार शक्ति हमसे बेटर होगी, उनकी सारी धारणाएं विचार करने की क्षमता हमसे बेटर होगी, वो इस तरह महामारियों से डरेंगे नहीं क्योंकि उनकी रोग प्रतिकार शक्ति उस लेवल पर जा चुकी होगी, उनको वो व्याधियां नहीं होंगी शायद जो हमको हो रही हैं। कैन वी क्रिएट अ होल न्यू ह्यूमन evolution for that matter, wherein they then are not faced with the same issues that we are facing with our limited capacity right now. They will think better than us, their clarity of thought will be much sharper than us, their focus might be better than us, their physicality might be better than us, maybe their immune system will be more powerful than us, maybe their body might be resistant to diseases far better than we are right now, maybe they will be able to cope with stress far better than we are able to cope with right now. That is the whole idea. That can we do that? Can we then not just go from home to home and say, we are taking it for your stress to go down? But when I look at it, I say, as many people as possible who participate in the Agnihotra movement right now are shaping a next human evolution. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम जब किसी की व्यक्ति के घर पे जाकर या किसी समारोह में अग्निहोत्र का प्रचार करते हैं, अग्निहोत्र की हम जानकारी देते हैं, तो अग्निहोत्र के माध्यम से उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो हमें सहाय्य करेंगे एक नई मानवीय उत्क्रांति के लिए। कि क्या वो हो सकता है कि एक ऐसा हम एक पीढ़ी को जन्म दे जो हमसे बेटर विकसित होगी, जो हमसे बहुत ज्यादा एक उत्तम होगी, एक बेटर एक व्यक्ति होगी हमसे। साथ ही में सेकेंड पॉइंट, क्या हम जो भी प्रश्न है समाज के उनको उत्तर दे पाएंगे क्या? क्या हम नित्य अग्निहोत्र के आचरण से, नित्य अग्निहोत्र की प्रैक्टिस के सहायता से पर्यावरण समतोल कर पाएंगे क्या? मानवीय द्वेष कम कर पाएंगे क्या? आरोग्य लोगों का बेटर कर पाएंगे क्या? खेती उत्तम कर पाएंगे क्या? व्यसनाधीनता कम कर पाएंगे क्या? ये भी, क्योंकि इसका वायु तो, इसका जो वातावरण है तो मेरे घर तक सीमित नहीं है, ये तो बहुत बड़े परिसर तक उसका असर होता है। तो अगर इतने सारे लोग एक साथ अग्निहोत्र करते रहे और करने लगे, अधिक मात्रा में करने लगे और नित्य करने लगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतना अगर कालावधि जाता है तो सचमुच हम इस भौतिक विश्व में भी परिवर्तन कर पाएंगे क्या?
The second point that is very important with this Agnihotra regular practice is that can we then also initiate a larger change in the world around us? Which is also a very important point. That because when I perform Agnihotra, it doesn't only affect me and my little tiny room, it affects on a larger area. Right? If it is affecting a larger area, and then maybe right now 1% of the population is doing Agnihotra, for instance, hypothetically. Maybe if that percentage grows, and this cycle of morning evening Agnihotra is done regularly round the world, round the whole, in every country worldwide, maybe over 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, this healing cycle keeps on moving through the entire planet, would we be able to address larger human issues? Can we reduce hatred in the world? Can we address bigotry in this world? Can we reduce addiction levels maybe? Can we maybe help stabilize the environment around us, improve agriculture, maybe reduce incidence of diseases on this planet? That is something we have to try and understand from a larger perspective. Because I think that is what that hymn is saying. मुझे ऐसा लगता है कि वही उस श्लोक में कहा गया है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा। जब भी कभी भी प्रजा का सृजन हुआ था, तभी यज्ञों के माध्यम से ही प्रजा को रहने योग्य वातावरण बनाया गया होगा। कि हमको जीने के लिए आवश्यक ये जो पोषक वातावरण है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, जो भी यहाँ पे लोग थे जिनको इसका पहले दर्शन हुआ होगा, शायद इसी प्रकार से इस सृष्टि को उसको विकसित किया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा ये आई एम गोइंग ऑन हाइपोथेटिकल, बहुत गालियां पड़ेंगी इसके लिए, बट ये विचार है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दैट मे बी दैट इज व्हाट दैट हिम इज ट्राइंग टू से, दैट दिस वर्ल्ड वाज मेड लिवेबल फॉर अस बाय अ जनरेशन बिफोर अस who got this message, who received this message as a revelation in their consciousness, and through regular practice of Agnihotra, they created a place where life could flourish, sustain itself, whatever we call it. I am going off on a tangent, like I said, I could get a lot of flack for it, but this is something that I want to understand, that if it helps in A, it helps in B, would help in C as well. That is what I'm trying to say, and I'm going beyond just a spiritual understanding, probably a spiritual scientific understanding. Again, this is a very difficult term for you people to understand. That एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक कॉम्बिनेशन का हम सोच कर सकते हैं क्या? कि क्या हम इसको वास्तविक उसी तरह अगर इसका इस्तेमाल किया गया होगा भूतकाल में, हमारे जो जिसको हम ऋषि बोलते हैं, जिनको हम दर्शन बोलते हैं, दर्शनकार हैं, क्या उन्होंने इसी प्रकार से दृष्टा जिनको बोला जाता है, इसी प्रकार से इस पृथ्वी का विकसित किया था क्या? इसको विचार करने की आवश्यकता है. This is something that is a thought. That's when the people who found this as a concept, who came up with this idea, did they use it in that time? And that is what Lord Krishna is referring to as a process of initiating larger transformation over a larger sphere of space, thus enabling life to flourish on this planet, in this world, whichever you want to take it. That is a thought that has been running around in a long time. That then can we do the same thing all over again? Like it had been done back then, can we now do it all over again to initiate a larger change? अगर उस समय किया जा सकता होगा, जैसे अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार से सह यज्ञ प्रजा सृष्टि, ये वो इष्ट काम होता, आपको जो भी चाहिए था वो प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अगर कहते हैं, तो वो ये कहते हैं क्या कि इस प्रकार नित्य अग्निहोत्र के आचरण से इस पृथ्वी को जीवन के लिए पोषक बनाया गया था. क्या ऐसा हो सकता है? क्या अगर
एक बड़े पैमाने पर इसको अगर किया जाता है, एक बड़ी संख्या में अगर अग्निहोत्र किए जाते हैं, तो क्या हम पुनश्च एक बार उसी को रिपीट कर सकेंगे क्या? उस समय जैसे उन्होंने किया था, क्या हम और आप मिलकर इस पृथ्वी को पुनश्च एक बार सारे जीवों के लिए हम जीने योग्य बना पाएंगे क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी को शायद सोचने की आवश्यकता है। मैंने कहा एक विचार है, एक थियरी है, इसको दिस इज जस्ट अ थियरी, दिस इज जस्ट अ थॉट. A lot more study has to go in, a lot more research has to definitely go in. But the thought is that we have to now think beyond just us and our families. That if it is possible, if we have stumbled upon a concept that can actually initiate such a larger change, we need to look at ourselves and this from a very different viewpoint now. अगर हम सचमुच भाग्यवान हैं कि हमको इस प्रकार का एक ज्ञान मिला है जो हो सकता है, मैं कहूँ हो सकता है, इस प्रकार का वैश्विक परिवर्तन कर पाए, तो हमने अपने आप को एक तो भाग्यवान समझना चाहिए। समाज से कुछ बेहतर हमको मिला है, ये हमको मालूम होना चाहिए और अपने इस प्रक्रिया को, इस नैमित्तिक साधना को एक विशाल वैश्विक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये मेरा कहना है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप सभी विचार करिएगा। 2-3 बार ये हमने श्लोक यहाँ पे पाठ किया था, उसका गीता का इस श्लोक का सहयज्ञा प्रजा सुष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्म एषो इष्ट कामदो। इसी को इष्ट को आपकी इष्ट प्राप्ति लगे। ऐसे लोग क्या समझते हैं इष्ट प्राप्ति मतलब मेरे को कोई एडमिशन करा दो भगवान, ये इष्ट कामना नहीं है। यहाँ पर ये इष्ट नहीं मांग रहे हैं हम लोग। वो इष्ट मतलब हम लोगों को अलग लगता है आजकल, मेरे इष्ट की इच्छा पूरी कर दो टाइप से। वो यहाँ पे हम लोग वो मापदंड नहीं है। यहाँ पे इष्ट कामना क्या है? ये संपूर्ण जीवों का, जैसे परम सद्गुरु को क्या कहते हैं, मेरी एक ही कामना है कि आशीष प्राणी मात्र का कल्याण हो। तो वो इष्ट कामना हुई। ये हम क्या कामना करेंगे, मुझे प्रमोशन दिला दो टाइप, वो छोटा मोटा तो आप भी अपने आप ही ले सकते हो, उसके लिए आपको कामना करने की आवश्यकता नहीं है। वो आप अपने लेवल पे मेहनत करके पा सकते हो। कामना ही करनी है। परम सद्गुरु क्या कहते हैं कि ऐसी कामना करो जो वैश्विक कल्याण की हो, संपूर्ण विश्व की कल्याण हो, ये आपकी कामना हो। और उसके पीछे आप अगर लगे हो तो आप एक बड़ी सोच के साथ जी रहे हो, ऐसा समझा जाता है। तो इष्ट जो कामना उन्होंने की थी, ऋषियों ने जो कामना की थी, जिसका भगवान श्री कृष्ण उल्लेख करते हैं, वो क्या है कि आशीष प्राणी मात्र का कल्याण हो, समस्त जीवों का कल्याण हो। ये कामना करके शायद अगर अग्निहोत्र किया जाता है तो शायद वो फलद्रूप होगा, जिसको अभी वो कल हम उसका वापस उल्लेख करेंगे, जिसका उल्लेख स्वामी समर्थ जी ने किया, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्ति भाव से, शरणागत भाव से वो इष्ट कामना लेकर काम करेगा, उसके योगक्षेमम के लिए आप ईश्वर आपको ग्वाही देते हैं कि आप कल्याण होगा। मैं कोई भी योगक्षेम के लिए मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अनन्य भाव से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे कामना वही करनी होगी जो इष्ट है, जो उन ऋषियों की कामना थी, जो अवतारों की कामना रही है, जो संतों की कामना रही है, जो यहाँ के प्रेषितों की कामना रही है। इन सारे महान विभूतियों ने एक ही कामना की है, समस्त जीवों का कल्याण होवे। इसी कामना को इष्ट माना गया है। अगर वही कामना हम लेकर अगर चलते हैं, उस कामना के आधार पर अगर अग्निहोत्र हम आचरण करते हैं, तो हम वो इष्ट काम दुख का अर्थ शायद समझ पाएंगे। We can't keep praying for, mundane little adventures that we can have, funny little ideas that we should gain on our own. We don't need to go asking for better grades or better promotions or better money or a bigger car. That we can get on our own. If you have to pray for, Param Sadguru says, if you have to pray for, if you have to ask for something, ask for what the rishis asked for. Ask for what the prophets asked for, the saints asked for, the holy men, holy wise people asked for. Ask that only one thing from the universe, that may every being live a fulfilled, happy life. That is my only
ask, only pray. If you go with that prayer in your hearts and minds, and if you ask that from this process, maybe then we can see a larger change come forth. That is what has to be understood. Like I said, maybe back then in that day, that's what the rishis might have done. I'm saying, maybe it's a food for thought. सोचने के लिए विषय है कि अगर उस समय हो सकता है तो क्या इस समय भी हो सकेगा क्या? If it can happen back then, as Lord Krishna says, that's what they did. Can we repeat the process? Right? Esho ishtakamado. गुरुवंदो ईश्वरीय इष्ट पाने के लिए जो सिस्टम तैयार है, हाँ, वो लेकिन वो होना चाहिए प्राप्त। आप छोटा मोटा कुछ मांग के बैठोगे तो वो वेस्टेड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि आज 750 करोड़ लोग हैं भूमि पर। और मेरे काम का है सुख समृद्धि शांति ईश्वर वही परम सदगुरु ने मांगा कहा है कि मेरी एक ही कामना है कि समस्त जीवों का कल्याण हो जाए, आशीष प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। वही अगर हमारी भी कामना है और उस कामना को फलद्रूप करने के लिए अगर हम इसका अगर आचरण करते हैं तो क्या शायद ये कर पाएंगे क्या? जैसे उन ऋषियों ने किया था, तो क्या हमको वो दुर्लभ संधि मिलेगी क्या इस पृथ्वी का भूतो न भविष्यति परिवर्तन करने का? क्या ठीक? Greetings and blessings to everyone. Namaste. My name is Nagash Betsaliel. I'm currently living in Detroit, Michigan, and I've been a practitioner through the disciplined succession of Sri Gajanam Maharaj. For about 13 years, I've been practicing the Agnihotra Home therapy ceremony, fire ritual, and it's had many benefits to it. It's kept the atmosphere around my home within a 6-mile radius clean and pure. It has allowed my spirit to be mellow and calm. It's been a bathing of the soul, most importantly. Many of us, when we get up, we wash our face, we bathe our body, we brush our teeth, take a shower, etc. But the soul also needs cleansing. It also needs purification every time we wake up. And so this Agnihotra fire not only cleanses the atmosphere, but it cleanses intoxicants and impurities that are on the body, inside the body, as well as on the imprint of the soul makeup. Because of its amazing benefits to purify the atmosphere and cleanse the atmosphere, it would be extremely beneficial at this time to practice so that we can cleanse the atmosphere and purify any viruses, any intoxicants and impurities for this COVID-19 virus that we're dealing with right now. We feel that this would be an amazing, very beneficial practice. We encourage everyone to take it up and stay blessed. Om Shri Namaste. Today we have performed mass Agnihotra and 10 minutes meditation. Because of the corona pandemic situation, our schools are closed, but we have scheduled our daily routine. We perform Agnihotra 2 times in a day at sunrise and sunset, different havans, meditation. We create different projects. We do Surya Namaskar and other exercises. I feel that our immune power increases with Agnihotra lifestyle. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्रीमत् सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु स्वामीदास ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय।
श्रीमद् सद्गुरु दयानंद स्वामी महाराज की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री श्रीकांत जी महाराज की जय।